الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد المعصومين ولعنة الله عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صلوات اللهم صل على محمد فضائل محترم برادران عزیز قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکار سید الشہداء کا یہ قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن میں 4 چیزیں ہیں، ایک عبارت الفاظ ہیں جو عوام کے لیے ہیں، کچھ اشارے ہیں جو خواص کے لیے ہیں، لطائف اولیاء کے لیے، حقائق انبیاء کے لیے۔ ابھی تک لطائف اور حقائق تک گفتگو نہیں پہنچی ہے، وجہ یہ تھی کہ کل ایک بات آ گئی تھی ضمنی، وہ عرض کیا کہ کہا گیا تھا کہ غازی عباس علیہ السلام کو فضائل بیان کیے جائیں، اس وجہ سے موقع نہیں ملا۔ کل جو گفتگو ہوئی تھی ادھوری گفتگو تھی، آج میں گفتگو کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے میں نے کل گزارش کی، آج بھی کر رہا ہوں کہ ایک طریقہ ہے ہر چیز کا۔ تبرع جز دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تبرع جز دین، تولا تبرع، تولا اہل بیت سے محبت اور مودت، تبرع دشمنوں سے بیزاری، کیفیت میں بس جو ہے اختلاف ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس طریقے سے اس وظیفے کو ادا کریں کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تقیہ میں ہے، تقیہ کا زمانہ ہے ہمارا، تو ہر جگہ تو ہماری وہ حکومت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر ہماری زندگی میں وارث سرکار سید الشہداء کا ظہور ہوا تو پھر وہاں تو آزادی ہے۔ تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اس وجہ سے ہمیں بہت سنبھال کے قدم اٹھانا، کہ ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے دنیا میں کہیں کے اوپر بھی ہمارے مومن بھائی کی جان، مال، عزت و آبرو، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ حکم ائمہ کی طرف سے، انہیں اجازت نہیں دی کہ جب چھٹے امام کے پاس کوئی آیا ہو، کہنے لگا فلاں آپ کا بہت چاہنے والا ہے، امام نے کہا کیا کرتا؟ کہا وہ کھلا آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ امام نے کہا وہ میرا بدترین دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ کہا وہ ہمارے دشمنوں کو برا بھلا کہہ رہا کھلا جو ان کے ماننے والے ہیں، پلٹ کر ہمیں کہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اہل بیت علیہ السلام شان میں گستاخی کرے۔ میں نے تو ایک مرتبہ گیا، توبہ کر لیا، دوبارہ جاؤں گا نہیں سائڈ پر۔ ایسا خبیث مسلمان انسان تصور نہیں کر سکتا۔ بہرحال لیکن ہمیں حقیقت بھی بچوں تک، اپنے نوجوانوں تک پہنچانی ہے۔ جب بات ٹی وی کے اوپر آ جاتی ہے تو چھپی تو نہیں رہتی ہے، سب نے۔ کل میں نے جو یہ آپ کے سامنے شعر پڑھا تھا کسی کا، اور اس شعر سے بہت بڑا استدلال کیا اپنی حقانیت پر، تو دفاع کرنے کا حق سب کو ہے، لیکن وہی اچھے طریقے سے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بار بار یہ شعر ریپیٹ کیا جا رہا تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا ریپیٹ تھا۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے، حالانکہ روایت ایسی ہے، خود اہل سنت کے عالم دین ہے مولانا وحید الدین خان صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، موضوع ہے، کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے جنازے کو لے کر حرم میں جانا پیغمبر کے، اور جو حکم ملے اس پر عمل کرنا۔
तो हरम में आए यानी रोज़े में आए तो वहाँ से आवाज़ आई, जैसे आज उनके खतीब पढ़ते हैं कि यार गार मज़ार बना दो, पैगम्बर को हुक्म आया कि यहीं पे दफन। तो खुद ये मौजू हदीस है, खुद उनके उलमा गवाही देते हैं कि हदीस वह झूठी है। खुद वहीदुद्दीन खान ने कहा कि झूठी हदीस है, गढ़ी हुई हदीस है। बहरहाल देखिए, हमारे जितने भी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं, एक ख़ास खुसूसियत हमारे इमाम की आइम्मा की वही है कि एक की फजीलत सबकी फजीलत है। हमारे आइम्मा को एक ही फजीलत, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि कोई शय किसी एक के लिए फजीलत बन रही हो और वही शय दूसरे के लिए मसाली बन रही हो, रजीलत माज़अल्लाह, ऐसा नहीं। क्यों? इतना इत्तेहाद है, इतना इत्तेहाद। आप सुना करते हैं, मुझे सिर्फ इशारा करना कि जब किसी ने ख्वाब में रसूल को देखा कि पैगंबर तशरीफ फरमा है, सलाम किया, सामने खजूर रखे हैं, एक मुट्ठी उठा के दे दी, गिना तो 18 खजूर थे। और जब 8वें इमाम अलैहिस्सलाम आए हैं, देखा उसी शान से बैठे हुए थे, शान से रसूल बैठे हुए थे, सलाम किया, एक मुट्ठी खजूर उठाया, इमाम ने दे दिया, गिना तो 8। वो ख्वाब था, ये बेदारी है। वो ख्वाब गिना तो 18, अपना रसूलुल्लाह जिदना और ज्यादा दीजिए। इमाम क्या जवाब दे, अगर हमारे जद ने ज्यादा दिए होते तो हम भी देते। तो जब ख्वाब में इख्तलाफ नहीं तो जागते में कैसे इख्तलाफ होगा? इतना ज्यादा, एक की फजीलत सबकी फजीलत। ठीक है, आप पढ़िए शेर, खूब शौक से पढ़िए। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, तीसरे का कत्ल होता है मदीने में। तारीखी हकीकत है, 2-3 दिन तक कूड़े के ऊपर लाश पड़ा रहा। तारीख सबने लिखा, कहाँ दफन हुआ? यहूदियों के कब्रिस्तान में। तारीखी हकीकत, कहाँ दफन हुआ? यहूदियों का। अब आप वही शेर पढ़िए, पहुंची वहीं पे खाक। हमारे ऐसा नहीं, एक की फजीलत सबकी फजीलत है, वहाँ ऐसा नहीं। उधर वो साबित हो रहे कि आप वो भी कहिए, वही हर जगह वही कहिए, जहाँ का था वही पहुंच गया। अच्छा, अब रहा ये मसला, बजाजा जगह की पाकीज़गी का असर तो होता है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सिनखियत होना चाहिए। मैं ऐसा करूँगा कि सिनखियत किसे कहते हैं, ये होना चाहिए। देखिए, परवरदिगार ने बज़्ल मलाइका में जो हुक्म दिया था कि तुम लोग आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया था। सजदल मलाइका कुल्लु मजमू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा काना मिनल काफिर हो गया। तो खुदा ने क्या कहा? फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, तू रजीम है। खुदा कहे निकल जा यहाँ से, तू रजीम है। अलैका लाना इला यौमिद्दीन, तेरे ऊपर लानत हो क़यामत तक के लिए। कहाँ लानत खुदा ने भेजी? फखरुज मिन्हा, हा की जमीन कहाँ जा रही? यहाँ से निकल जा, यानी बज़्म में फरिश्तों के बज़्म से निकल जा। भेजा वहाँ पर, जब वहाँ पर लानत भेजी फरिश्तों के बज़्म में, लानत पहुँची नहीं पहुँची? पहुँची। तो मालूम अगर कोई मुस्तहिक़ लानत हो तो बज़्म की पाकीज़गी माने नहीं होती है। सूरह बकरा दूसरा सूरह कुरान मजीद का, उसकी आयत है, आयत नंबर 259 259, देख लीजिएगा तर्जुमा जाकर आप। अब कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। एक नबी का जिक्र है, जब एक बस्ती से गुजरे नबी, देखा बस्ती वीरान हो चुकी है, कुछ कोई रहने वाला नहीं। तो हैरत से कहते हैं अल्लाह कैसे इसे जिंदा करेगा? तो नबी कहते हैं अल्लाह इस बस्ती, पता है सब कुछ, लेकिन वो जैसे जनाब इब्राहिम ने कहा था रब्बे अरनी कैफा तुह्यिल मौता, खुदा दिखा दे कैसे मुर्दे को जिंदा करता है। का ईमान नहीं, ईमान है लेकिन इतना नकल नहीं सवाल। तो जब देखा कि बस्ती नाबूद हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, अन्ना हाज़िही अल्लाह, अल्लाह कैसे जिंदा करेगा इसे? फ़अमातहुल्लाह मिअत आम, अल्लाह ने 100 साल के लिए मौत दे दी। फ़अमातहुल्लाह मिअत आम, सुम्मा बअसहु, फिर जिंदा किया। काला कम लबिस्ता, कितने देर तक तुम यहाँ पे ठहरे? काला लबिस्त यौमन औ बाज़ा यौम, क्या कह रहे हैं? एक दिन या उससे कुछ कम। माशाल्लाह। काला लबिस्त मिअत आम, एक दिन नहीं 100 साल तक तुम सोए। ये पुरानी वाक़या है, 100 साल तक। उन्जुर
इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, जरा अपने खाने पीने की चीजों की तरफ देखो, कोई खराब नहीं हुआ। माशाल्लाह। 100 साल तक, ये बताइए आज का जमाना नहीं कि आप फ्रिज में रख दें और 3 महीने तक चले, उस जमाने का वाकया है। खाना कितने दिन तक चलता, पानी कितने दिन तक चलता, 100 साल तक चल सकता है। 2 दिन के बाद सड़ जाएगा खाना, 2, 4, 5 दिन के बाद पानी खत्म है, सूरज की रोशनी पड़ेगी तो बुखार बन के उड़ जाएगा पानी। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, उन्जुर इला तामिका व शराबिका, अपने खाने की तरफ देखो, पीने की, लम यतसन्ना, ये खराब नहीं हुए। पानी की जिंदगी कितनी, खाने की जिंदगी 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जिसकी जिंदगी 2 दिन 4 दिन, खुदा 100 साल तक उसे बाकी रखे हुए। तो जो खुदा पानी और खाने को इतनी बका दे सकता है, इंसान को क्या बाकी नहीं रख सकता? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले शराबिका, अपने खाने पीने लम यतसन्ना, ये खराब नहीं। अपने गधे की तरफ देखो, ये कुरान है। अपने गधे की तरफ देखो। उसके बाद क्या हुआ, लिनजअलका आयतन, हम तुम्हें निशानी बनाना चाहते हैं, लिन्नास, लोगों के लिए। हम तुम्हें, ज़मीर सिर्फ एक है। गधे की तरफ देखो, हम तुम्हें निशानी, क्या मकसद, यानी मासूम खुद आयत खुदा हुआ करता है। मासूम खुद आयत, लिनजअलका आयतन लिन्नास। उसके बाद फिर उन्जुर इलल हिमार, अब तुम गधे की तरफ देखो, कैफा नुनशिज़ुहा, किस तरीके से इसकी हड्डियों को हम जमा करते हैं, व नक्सूहा लहमन, और इसके ऊपर हम गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यन क़ाल आलम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जब वो गधा जिंदा हो गया तो क्या कहा, मुझे पता ही है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। और यहाँ पर आप गौर करें, नबी और उसका गधा दोनों हैं, मर गए, दोनों मरे। कुरान कह रहा है 100 साल के लिए, 100 साल के लिए, और उसके बाद नबी उठे और गधा भी उठा। 100 साल तक गधा नबी के बराबर सोता रहा। सिनखियत नहीं है, नबी की जिन्स और है, नबी की नौ और है, गधे की जिन्स और है, गधे की नौ और है, सिनखियत नहीं है। हमारी नबी है शजरे तैयबा, ये शजरे खबीसा, कौन सी कभी कभी ऐसा होता है कि लंबी तगड़ी तकरीर अगर की जाए, लंबी चौड़ी तकरीर की जाए, 2 घंटे 4 घंटे की, उसको शायर सिर्फ एक मिसरे में जमा कर देता है। ये क्या बात है, शायर करता है क्या, दरिया को कूजे में समेट देता है। तो शेर किसे कहते हैं, शायर अपने तखय्युलात के मजमूए के मोतियों को जब वजनी धागे में पिरो दे तो एक माला बनता, सोचता, तखय्युल करता, मोती आते तो वजनी धागे में पिरोता एक के बाद, तो खूबसूरत माला, वही नज्म कहलाता, वही शेर कहलाता। यही माला जब मुंतशिर हो जाए तो नस्र कहलाता है। इसी से नज्म का दुनिया अदब में जो मर्तबा नज्म का वो नस्र का थोड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ नज्म और नस्र में कोई फर्क नहीं है। क्या बात है, कोई फर्क नज्म, क्यों, इस वजह से नूर मोहम्मदी जब तक नज्म की मंजिल में रहा, एक मोहम्मद रहा। नस्म की मंजिल में आए तो 14 मोहम्मद। खुशबू दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। कोई फर्क नहीं भाई, ये तो ऐसे हैं कि इनके नजदीक ऐसे खुदा के मानने वाले जिस खुदा के नजदीक सीन और शीन में कोई फर्क नहीं है। माशाअल्लाह। भाई शिकायत की थी बिलाल की, ये असहादो कहते हैं, तो पैगंबर ने क्या कहा, सीन और बिलाल इंदल्लाह शीन, ये नियत देखते हैं, अल्फाज नहीं देखते अल्फाज। लेकिन बहरहाल नज़्म है, तो शायर ने कितनी खूबसूरती से
पूरे दरिया को कूजे में समो दिया है। शायर क्या कहता है, इन मुर्दा परवानों को महफिल से उठा लो यारो, इन मुर्दा परवानों को महफिल से उठा लो यारो, शम्मा मासूम है बदनाम हुई जाती है। चाहिए, खुसूसन जो हैदर कर्रार के दर से वाबस्ता उन्हें तो नहीं छेड़ना चाहिए, वरना इसी सुनने को मिलेगा। कुरान और अहले बैत, गुफ्तगू ये हो रही थी कि अहले बैत कौन है। इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मत को मुशव्विश कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। और अहले बैत में तमाम अज़वाज शामिल हैं, तमाम असहाब शामिल हैं, किसी ने कहा तमाम मदीने वाले शामिल हैं, किसी ने कहा पूरी उम्मत शामिल है। लेकिन अज़वाज के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बहरहाल जो है काबिल एहतराम है, और जैसा कि हमारे अहले बैत ने तालीम दी, हम ना किसी को गाली देते ना कुछ, लेकिन जो हकीकत वो तो बयान की जाएगी। फिर लोग क्या कहते हैं, अज़वाज शामिल है, अहले बैत में अज़वाज शामिल, उस पर जो दलील उन्होंने दी, मैं दलील आपको सामने पेश करना चाहता हूँ। देखिए उनकी भी तो बात सुनना चाहिए, तो वो भी तो बात करते हैं, बिला दलील तो नहीं करते हैं। दलील उनकी कैसी भी हो, बाद में उसको काट, कभी कभी ज़ाहिरन उनकी दलील बहुत मजबूत होती है, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिरन उनकी दलील कभी कभी बहुत ज़ाहिरन कह रहा हूँ, लेकिन जब उस दलील का ऑपरेशन किया जाता है तो वह निकलता है खोदा पहाड़ वही होता है। वो कहते हैं कि ये आयत थी सूरह अहज़ाब में, सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा, वो आयत थी 33। आयत तत्हीर से पहले और आयत तत्हीर के बाद किसका जिक्र? या निसान नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ये कुरान कह रहा है, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। कैसी हो तुम? करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, घरों में बैठी रहो, वैसे ना निकलो जैसे अय्याम जाहिलियत में निकला करती थी। जियो जियो, आपको पता है अय्याम जाहिलियत में औरतें मैदान जंग में आती थी, वक्त का आपने वाकया पढ़ा है, हिंदा आई कि नहीं आई? तो अब पता नहीं कुरान मना कर रहा है या पेशन गोई कर रहा है। वाह 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 माशाअल्लाह। वला तबर्रुजना तबर्रुजल ऊला अकीमना सलात व आतैना ज़कात, नमाजें पढ़ो, ज़कात दो, वअताना अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वज़कुरना, उसके बाद क्या, वज़कुरना फी बुयूतिकुन्ना, वज़कुरना याद करो मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घर तुम्हारे घरों में जो तिलावत होती उसे तुम याद रखो। तब कहते हैं क्या यहाँ ऊपर उलमा पहुँच गए। देखिए एक लफ्ज़ बैत है, एक लफ्ज़ बुयूत है, इस पर बोल बैत यानी बुयूत यानी बहुत से घर। वो कहते हैं कि आयत तत्हीर से पहले अज़वाज का जिक्र है, आयत तत्हीर के बाद अज़वाज का जिक्र है। इसका मकसद है कि अहले बैत में अज़वाज हतमन शामिल हैं, उनको नहीं निकाला जा सकता, और ये दलील उनकी सबसे मुस्तहकम और मजबूत दलील है उनके एतबार से, क्योंकि पहले अज़वाज का जिक्र है और बाद में अज़वाज का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है, और जब अहले बैत बीच में आए तो अहले बैत से मुराद यही होगा, यही सब हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा गौर किया जाए मोहतरम, थोड़ा सा गौर करें। मैंने कहा एक बैत है कि जो पहले कहा गया या निसान नबी करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो, बैत नहीं कहा, बैत फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो। तुम्हारे घरों में जो तिलावत हो रही है, अपने घरों में बैठी रहो। तो पहले बुयूत का जिक्र है तत्हीर से पहले, बाद में बुयूत का जिक्र है। अगर अज़वाज मुराद होती तो अहलल बुयूत होता, अहले बैत ना होता। ये फसाद बलागत के खिलाफ है कि अहले बैत ना होता, अहले बुयूत होता। ऐ नबी की बीवी अपने घरों में बैठी रहो, और फिर उसके बाद नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बुयूत, ऐ घर वालियों, ये तो, लेकिन वहाँ अहले बुयूत नहीं है, अहले बैत है। पहले बुयूत है, बाद में बुयूत है, और यहाँ के ऊपर अहले बैत है। तो ये खुद बता रहा है कि एक घर है, सब घर नहीं मुराद है। एक घर है, सब घर नहीं मुराद। अच्छा एक घर अगर इन्हीं में से किसी का होता तो ये झगड़ा करती, वो कहती हमारा है, वो कहते घर हमारा है, वो कहती घर हमारा है, झगड़ा तारीख में आया नहीं। इसका मतलब उनको भी पता था कि वो घर हमारा घर नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद
آیت کی شان کیا ہے؟ وہاں سب مؤنث کے صیغے ہیں، یہاں سب مذکر کے صیغے ہیں، وہاں جمع ہے بیوت اپنے گھروں میں، یہاں لفظ بیت ہے صرف، مطلب ایک بیت، وہ ان کا نہیں ہے، اگر ان کا ہوتا تو ایک بیوت ہوتا۔ اور اس کے بعد جو حدیثی آئی ہیں، روایات آئی ہیں، ان میں تو صاف ظاہر ہے پنجتن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں کیا لیکن بہرحال اضافات کرتے تھے، بہرحال کیا کرتے، لیکن جب وہاں یہاں تک وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب ہم ان کو نہیں شامل کر سکتے ہیں، تو اب دوسرے راستے سے آئے۔ وہ کیا؟ وہ آیت کے ترجمے میں انہیں گڑبڑی تھی، بڑے بڑے لوگوں نے، معمولی لوگوں نے، ان کے محدث دہلوی ایسے لوگوں نے بڑے اعتراض کیا، کیا بھائی آیت تطہیر کو اتنی زیادہ مدح نہیں کر رہی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے اتنی زیادہ مدح نہیں کر رہی ہے کہ کہنے ان کا جو ترجمہ ہے کہ اہل بیت اللہ آپ کو نجاستوں سے دور کرے، پاک کرے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس کا مقصد ہے کہ پہلے وہ پاک نہیں تھے، تو اس میں کیا بات ہے؟ نعوذ باللہ، یہ انہوں نے ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے یہاں پر ترجمہ کرنے سے پہلے، اس چادر میں امام حسن اور امام حسین ہیں اور دونوں بچے ہیں، کوئی بھی شریعت ان کو گناہگار نہیں کر سکتی، اور دوسرے پیغمبر بھی چادر کی، لیکن پھر بھی خیر اب میں قرآن کی آیت پڑھوں معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے وہی ہے نا، آپ وہی ذہن میں رکھیے، پہنچی وہی پہ خاک، ایک بات ہے تو ہر جگہ ہونا چاہیے۔ ترجمہ کر یہاں پہ یہ کیا ہے کہ پاک کرے تو یہ ترجمہ ہر جگہ کرنا پڑے گا۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ سورہ بقرہ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكِّعِ السُّجُودِ۔ جب ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا، کس سے؟ ابراہیم اور اسماعیل سے۔ کیا وعدہ لیا، کیا عہد لیا؟ کہ ہمارے گھر کو، اب میں جگہ چھوڑ رہا ہوں ترجمہ، اعتکاف کرنے والے، طواف کرنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والوں کے لیے کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ پاک کرو یا پاک رکھو؟ یہاں کیا ترجمہ؟ پاک کرو یا پاک رکھو؟ بھائی گھر کے بنانے والے کون ہیں؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا۔ اور کس نے مدد کی؟ جناب جبرائیل نے مدد کی۔ یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جس کا مزدور بھی معصوم، جس کا معمار بھی معصوم، سب معصوم، تو وہاں نجاست کا، خباثت کا کچھ بھی نہیں۔ اب وہاں پہ کیا ترجمہ کیا؟ کہا وہاں پہ ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کرو، بلکہ وہاں ترجمہ کیا رکھو۔ پاک جو ہے تمہاری ذمہ داری یہ کسے پاک بھی رکھنا، پاک رکھو۔ تو بھائی جب وہ ترجمہ یہاں پہ کیا تو یہ آیت تطہیر بیت کے لیے ہے، تو بیت کے لیے یہ ترجمہ کیا اور اہل بیت کے لیے ترجمہ بدل گیا۔ وہاں پاک رکھو تو یہاں بھی ترجمہ ہوگا پاک ہو، پاک رہو گے۔ لیکن دونوں تطہیر میں عزیز و زمین و آسمان کا فرق ہے، بیت کی بھی تطہیر، اہل بیت کی بھی تطہیر۔ جب بیت کی تطہیر کا مرحلہ آیا تو کام انبیاء کے حوالے کر دیا، ابراہیم و اسماعیل تم ہمارے گھر کو پاک رکھنا، ابراہیم اسماعیل تم ہمارے گھر کو پاک رکھنا۔ لیکن جب اہل بیت کی تطہیر کا مسئلہ آیا، نہ آدم کے، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ جبرائیل، نہ میکائیل اپنے ذمہ لے لیا، اے اہل بیت میرا یہ ارادہ ہے۔ کام کو اپنے ذمہ لے لیں تو نتیجہ بھی بڑا واضح اور روشن ہے، اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی خانہ کعبہ کی تطہیر ابراہیم اور اسماعیل کے کندھے پر رکھی، جب تک باپ بیٹے زندہ رہے کعبے میں بتوں کی نجاست نہیں آئی۔ جب تک باپ بیٹے زندہ رہے کعبے میں بتوں کی نجاست، جب باپ بیٹے دنیا سے چلے گئے تو غاصبوں نے قبضہ کر لیا، 313 بت آ گئے۔ دیکھیے کعبے کی تطہیر کی ذمہ داری ابراہیم و اسماعیل کی تھی، جب تک زندہ رہے پورا کرتے رہے، چلے گئے دنیا سے ذمہ داری ختم، کعبے میں نجاست آ گئی، بت آ گئے، اہل بیت کی تطہیر خدا نے اپنے ذمہ لی، جب تک خدا زندہ ہے اہل بیت کو تطہیر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ لاکھ کوشش کرو تم اہل بیت کی عظمتوں کو کم کرنا چاہو، کیسے کم کر سکتے ہو؟ جس کی عظمتوں کا ذمہ دار خدا ہو۔
सूरज के ऊपर थूकने से अपना ही मुंह गंदा होगा, अपने सूरज के ऊपर नहीं जा सकता। ये फजाइल का सूरज है, चमकता हुआ सूरज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रोज रोशन की तरह हुआ है, लेकिन अफसोस पहचान न सका मुसलमान। काश पहचान लेता तो आज इस्लाम की हालत न होती, आज मुसलमानों की हालत न होती। बस अजीजों, मैंने जहमत तमाम किया। आज मुहर्रम की 8 तारीख होगी, बस 2 दिन बचेंगे, कल 9, उसके बाद परसों आशूरा। आज आप हाय हाय यूँ तो करबला में जितने हैं सभी आशूर के दिन शहीद हुए, लेकिन उर्सा देने का ख़ास अंदाज है हमारा कि एक एक दिन को एक एक शहीद से मखसूस करना। और आज का दिन हज़रत अली अकबर, ये वो जवान बेटा जिससे हुसैन बेइंतहा चाहते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अली इस वजह से नहीं कि मेरा बेटा है, बल्कि इस वजह से मोहब्बत करते थे कि हम शबीह रसूल हैं। इस वजह से खुद इमाम हुसैन ने दुआ की थी, जब चलने लगे और रुखसत हुए तो हाथ को आसमान की तरफ बुलंद किया, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाए कौम, खुदाया इस कौम के ऊपर गवाह रहना। अब वो जा रहा है, अब वो जा रहा है जो सूरत और सीरत में रफ्तार और गुफ्तार रसूल से मुशाबे, रसूल से मुशाबे। अली अकबर चले, इमाम हुसैन उनके पीछे 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 पीछे। क्यों आ रहे हैं पीछे पीछे? बेटे की मोहब्बत ला रही है या नहीं, या हुसैन को पैगाम देना चाहते हो? शायद मेरा तस्वुर कह रहा है शायद पैगाम देना चाहते हो कि जब फौज अशकिया देखेगी हुसैन किसी के पीछे चले आ रहे हैं दौड़ते हुए तो आखिर पूछेगी ये कौन जवान है जिससे हुसैन इतनी मोहब्बत करते हैं। तो कोई ना कोई तो होगा फौजी जिसने रसूल को देखा होगा, तो जवाब देगा ये हम शबीह पैगंबर आ रहा है, ये हम शबीह पैगंबर आ रहा है। इमाम हुसैन ने अली अकबर को रुखसत किया, अली अकबर मैदान में आए। आने के बाद जंग करना शुरू की, जंग जख्मी पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर खून में नहाए। दोबारा बाबा की खिदमत में आए, बाबा थोड़ा सा पानी अगर और जिहाद करो, और ज़्यादा जिहाद करो। साक़ी कौसर का लाल, पता है कितना सख्त ये इम्तिहान था हुसैन इब्न अली का। अपनी ज़बान अली अकबर के मुंह में दी, अली अकबर की ज़बान अपने में, अली अकबर ने ज़बान निकाल दी। बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे ज़्यादा खुश है। इसका मकसद ये है हुसैन की प्यास 3 दिन से ज़्यादा थी। अरे जब पानी का ज़ख़ीरा कम हो गया हो, कम रहा होगा पानी, शायद तभी से हुसैन ने पानी पीना छोड़ दिया। जो पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, जैसे ही देखा कि हाँ पानी कम हो रहा, तो हुसैन ने पहले ही से पानी पिया। तो सबकी प्यास 3 दिन की है, हुसैन की प्यास शायद इससे ज्यादा। जाओ बेटा अली अकबर, खुदा हाफ़िज़, अब तो जन्नत में तुम्हें सैराब करेंगे तुम्हारे दादा। जामे कौसर। अली अकबर आए मैदान में, जंग करना शुरू किया, क़िताल करना शुरू किया, और ऐसा क़िताल कि लोगों को अली का ज़माना याद। अकेला हज़ारों से मतलब लड़ता, लेकिन सामने से किसी की ज़रूरत न हुई, किसी ने पीछे से नेज़ा मारा, और ये वार इतना जबरदस्त था कि नेज़ा पड़ा तो पीछे मगर सीने से। अली अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली, घोड़ा आगे बढ़ा, कोई तलवार मारा, किसी ने नेज़ा मारा। मक्तल का जुमला है इरबन इरबा, अली अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े। घोड़े से नीचे गिरे, आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। हुसैन के कानों तक आवाज पहुंची तो जुमला कहा, बेटा अली अकबर अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों का नूर चला गया, मेरे लाल मेरी आंखों का नूर चला, कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारी आवाज के सहारे पहुंचूं। अली अकबर पुकारते रहे बाबा, और हुसैन या अली या अली या अली कहते हुए बूढ़ा बाप जख्मी बेटे के सराहने पहुंचा। अली अकबर का सर अपने हाथों पे रखा, देखा एक हाथ सीने पर है। अली अकबर ये हाथ सीने पर कहा, बाबा पर्ची का फल टूटेगा। बस ये मंजर था, ये अर्श दरस जाता है, मलाइका में कोहराम बच जाता है, सब में पीपल का हुसैन के कदम चूमता है। बटा हुसैन ने हाथ को सीने पर रखा और या अली कह के जब
कलेजा पिला दे। ये खून का फवारा हुसैन ने रुखसार के ऊपर रुखसार रख दिया। मेरे लाल अली अकबर, मेरे लाल अली अकबर, तुम्हारे मरने के बाद अब दुनिया का कोई मजा नहीं बेटा। मेरी आंखों का नूर ज़ाहिर हो गया है। आखिरी वक्त अली अकबर का एक मरतबा हसरत भरी निगाह से बाबा को देखते हैं। बाबा मुझे पता है आप मजलूम हैं मगर मजबूर नहीं। बाबा ख्वाहिश है मुझे मदीने में एक मरतबा कहा था जब अंगूर का मौसम नहीं था, बाबा अंगूर खाने का दिल चाह रहा है। एजाज से इमाम हुसैन ने, मोजज़े से इमाम हुसैन ने अंगूर मंगा कर दिए थे। आज कह रहे हैं जख्मी बाबा एक ख्वाहिश है। अली अकबर क्या ख्वाहिश है? बाबा जब मदीने से चला था तो बहन सुगरा से वादा किया था। अल्लाह बहुत किया करेंगे अजीजों। बाबा जब मदीने से चला था तो बहन सुगरा से वादा किया था। दिल चाहता है कि सुगरा को देख लूं। मैं इतना सुनना था। हुसैन ने इशारा किया, कहा बेटा जरा दो उंगलियों के दरमियान तो देखना। अब जब देखा तो मदीना नजर आया, रोज़े रसूल नजर आया, महल्ले बनी हाशिम नजर आया, घर नजर आया मगर सुगरा नजर न आया। बाबा शायद बहन मर गई मुझसे पहले। नहीं बेटा गौर से देखो। जब देखा तो जहां पर वादा किया था, कहां पर वादा किया था कि भैया मुझे भूलना नहीं, देने के लिए जरूर आना। सुगरा वहां पर बैठी बहन कर रही है। भैया बहन तो भूल गए, भैया बहन याद कर रही है। अली अकबर ने आवाज दी, सुगरा अली अकबर का आखिरी सलाम। सुगरा अली अकबर का इंतजार ना करना, नीचे रूह अली अकबर गुलशन जन्नत को परवाज कर गई। एक मर्तबा हुसैन उठे, अली अकबर का लाशा उठाना चाहा। आपसे जवान बेटे का लाशा ना उठाओ। यहाँ पर उम्र यही पढ़ा जाता है कि हुसैन इतने कमजोर हो गए थे कि जवान बेटे का लाशा न उठ सका। लेकिन अजीजों मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा। शहादत अली अकबर के बाद हुसैन ने ऐसा जिहाद किया है कि तारीख उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। ये जिस्म की कमजोरी नहीं है। अजीजों बात कहना चाहता हूँ, क्यों हुसैन ने कहा बनी हाशिम के बच्चों आओ अली अकबर का लाशा उठाओ। मख्तल का जो जुमला है इरबन इरबा, अरे जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे जनाजा सालिम हो तो उठा लिया जाता है, जब लाश के टुकड़े हो तो कैसे उठाए? बच्चों आओ आओ। अली अकबर का जख्मी जनाजा खैमे में पहुंचा। ज़ैनब ने देखा, रबाब ने देखा, लैला ने, सकीना ने, वाह अली अकबर वाह हुसैन। हाय हाय जवान अकबर जवान, 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 हाय हाय जवान